Hello, good morning, everyone. Um, in the last video, we did the topic relations and functions. हमने relations and functions लिया था और उस relations में we discussed all the types of relations और बहुत से bullet points किए थे. अभी आज के वीडियो में इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी डिड इन द अर्लियर वीडियो. हमने पिछले वीडियो में जो किया था उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई देम इन द क्वेश्चंस. So without wasting further time, I'll switch to the questions. Okay. कुछ क्वेश्चंस पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ करूंगी एंड आई विल डू देम विद यू एंड देन आई विल गिव यू few questions to try. The first, now coming to this, the first question, the first question, if this contains n A contains n distinct elements. A में n elements हैं. So the number of relations that can be possible, you know that 2 n into n, which will be 2 n square. हमने number of relations from A to B 2 raised to power mn किया था. Now we know that A to A relation है, तो obviously it is going to be n into n 2 n square. So the number of relations possible when defined on A will be 2 raised to power n square. Coming to next question. Let R be the relation defined by rule R be the relation on the set n to n. Now the key point is natural number से natural number relation है. X has to be natural number, Y has to be natural number. Is that clear? Now the relation is defined by the equation x plus 2y is equal to 8. यहाँ पे आपका जो है relation x plus 2y is equal to 8 है. Now the domain of the relation. To find the domain, let us find the ordered pairs in the relation set. The relation is x plus 2y is equal to 8. 2y is equal to 8 minus x. Y is going to be 8 minus x by 2. Is that clear? हमने थोड़ा सा इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया. Now, I am allowed to take x as the natural number. मुझे x को natural number लेना है. तो पहला natural number क्या होता है? x is equal to 1. 1 लीजिए. तो y क्या आएगा? 8 minus 1, 7 by 2. 3.5 है जो कि natural number नहीं है. तो ये relation set में नहीं आ सकता. This ordered pair cannot belong to R. Now coming to next. x is equal to 2. y का वैल्यू क्या है? 6 by 2, 3. So 2, 3 will belong to this relation set. Now coming to next, x is equal to 3. y will come out to be 8 minus 3 by 2, 5 by 2. तो क्लियरली ऑड नंबर्स नहीं लेने चाहिए बिकॉज 2 से डिवाइड करना है, तो इसको करने की ज़रूरत भी नहीं थी. वी हैव टू सेव टाइम. तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा. x इज इक्वल टू 4, y विल बी इक्वल टू 8 माइनस 4 बाय 2. तो 4 और 2 रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा. x इज इक्वल टू 5, ऑड नंबर नहीं लेते हैं क्योंकि बाय 2 है. y has to be divided by 2, तो ऑड नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा. x इज इक्वल टू 5 को अवॉइड करते हैं. x इज इक्वल टू 6, 2 by 2, 1. तो 6, 1 बिलोंग करेगा. नाउ x इज इक्वल टू 7 नहीं लेते हैं क्योंकि अगेन ऑड नंबर का प्रॉब्लम है. 7 लेंगे तो 8 माइनस 7, 1 by 2.
रिलेशन सेट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि y हैज टू बी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 लेते हैं. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो y क्या होगा? 8 माइनस 8 बाय 2, 0. नाउ problem is y is coming out to be 0, so which is not a natural number. So again हम इसे रिलेशन में नहीं पुट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर को रिलेशन में नहीं रखेंगे. अब x इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑड नंबर इवन नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं. y will come out to be 8 minus 10 by 2 minus 2 by 2 minus 1. इंटीजर है, अगेन नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा रिलेशन सेट यहाँ खत्म हो जाएगा. एम आई क्लियर? तो हमारा रिलेशन सेट यहीं पे ओवर हो जाएगा. सो डोमेन हेयर is going to be 2, 4 and 6. I've already told you first element of the ordered pair is domain and the second element is range. अभी कोडोमेन की भी बात कर लेते हैं. कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इज कहाँ से हमें y का वैल्यूज लेना अलाउड था. All the natural numbers will come in the codomain. All the natural numbers will come in codomain. Range is a subset of codomain. So the question here is, what is domain here? That is B option, 246. 246. Coming to next question. A is 1, 2, 3 and हमें रिलेशन दे रखा है. A का सेट है 1, 2, 3. रिलेशन इज A on A, बाइनरी रिलेशन है. तो एंड कंसिडर द रिलेशन जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3. ओके, ऑर्डर्ड पेयर्स भी हमको दे दिए गए हैं. एंड आई हैव टू टेल कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है. मेरे पास ये 4 ऑप्शंस है. नाउ फर्स्ट वेरी क्लियरली 1, 2, 3, ये 1, 1, 2, 2, 3, 3 प्रेजेंट, रिफ्लेक्सिव है. इन दोनों में ए और बी ऑप्शन हमारे, बाकी दो को ओमिट कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए. रिफ्लेक्सिव दे रखा है तो ए और बी को तो लेना पड़ेगा. अब हम क्या कर लेते हैं, पहले विल चेक फॉर सिमेट्रिक. अब 1, 2 इज देयर बट 2, 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर. 2, 1 इस सेट में नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक. Without wasting time, we are going to choose this option. Reflexive but not symmetric. Don't look for transitive. We have to save time. हमको time save करना है, तो transitive के लिए नहीं देखेंगे. Reflexive but not symmetric is very apt option for us. Choose it, mark it, and go to the next question. Next. The maximum number of equivalence relation. पिछली बार मैंने आपको बहुत क्लियरली कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं पिछले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू. एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये बेल नंबर से दिया जाता. दोज आर स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड. इफ यू वांट टू गो फॉर दैट वीडियो, देयर इज साइड वीडियो विच आई विल बी पोस्टिंग. पहले देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशंस. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो पहला इक्विवेलेंस, देयर विल बी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 पॉसिबल. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, जो आपने सर्कल किए उसे नीचे लाइए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 2, सर्कल इट अगेन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो ये 2 यहाँ पे ले आइए, 3 इसको यहाँ पे लाइए, जो जिस पे हमने स्टॉप किया था पिछले रो में उसे नीचे ले आइए. 2 + 3 क्या है? 5. तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं. नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 है. हमारा आंसर, वी हैव गॉट आवर आंसर, हमारा आंसर निकल गया है. बट लेट अस डू फॉर 4. आपने 5 पे स्टॉप किया. ब्रिंग 5 हियर इन दिस रो. 2 + 5 7, 3 + 7 10,
15. Maximum number of equivalence relations when 4 elements are there, 15 possible होता है. When we have 5 elements, 15 यहाँ रखिए, लास्ट जहाँ पे रो पे एंड किया 15 रखिए, 5 + 15 20, 7 + 20 27, 37 and 52. Maximum number of equivalence relations possible 52. But we have got our answer when the number of elements 3, हमारे equivalence relations 5 होते हैं. Am I clear? Getting to next question. अगर relation is on set A, 1 2 3 उसके elements हैं and R is equal to 1 2, टाइप बताना, इसका टाइप क्या है. दो इन द लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड इट, बट आई एम डिस्कसिंग इट अगेन. ये रिफ्लेक्सिव तो क्लियरली नहीं है क्योंकि इसमें ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ भी नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 प्रेजेंट, 2 1 प्रेजेंट नहीं है. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर फॉर इट टू बी सिमेट्रिक. वो तो नहीं है, 2 1 इसको बिलोंग ही नहीं कर रहा है. 1 2 है आर को, तो 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है. अब नाउ दिस इज ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर ट्रांजिटिव, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, yz belongs to R, then it implies that xz should also belong to R to be, for this to be transitive. अगर x y R को belong कर रहा है, yz R को belong कर रहा है, xz भी R को belong करना चाहिए, transitive तब बन जाएगा. लेकिन अभी के केस में देखिए, इस केस में 1 2 is belonging to R, yz तो है ही नहीं ना. जब when yz is not present in the relation, हम xz को कहाँ पे, where should we look for xz? तो this clearly 1 2 is belonging to R but yz is not present, and xz को देखने का मतलब ही नहीं बनता क्योंकि yz तो है ही नहीं. तो that's why this is transitive, क्योंकि ये अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है. yz है नहीं, xz को देखना नहीं है, तो xy, only xy is belonging to R, so this relation is transitive. Next question. Next question. This, we have done this question in NCERT also, but I'll discuss it in detail. X minus y, if it is not clear, ये modulus है, ये मॉड्यूलस है. एक्स रिलेशन सेट में वही एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, जिनका डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 3. डिफरेंस हैज टू बी डिविजिबल बाय 3. नाउ टू फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन. ए चेक करिए, a माइनस ए 0 आ रहा है. 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है. 0 इज डिविजिबल बाय 3 because we can express this as 0 can be expressed as 3k, 3 का multiple, where k is a minus a is equal to 0, where 0 can be expressed as 3k, where k is any integer. जो a minus a is equal to 0 है, 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, तो 3 into something हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और 3 into 0 एक्सप्रेस कर सकते हैं, k is any integer. Now
फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, सो बी ए, इट इम्प्लाइज बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर. अगर फॉर मी ए बी इज बिलोंगिंग टू आर एंड आई हैव टू चेक कि वो बी ए भी बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब कि ए माइनस बी 3 का मल्टीपल है. जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं, जब हम मॉड्यूलस हटाते हैं तो ये a माइनस बी कैन बी रिटन एज प्लस माइनस 3k, बिकॉज यहाँ पे जो भी है पॉजिटिव है या नेगेटिव 3k है वो 3k ही बनेगा. तो मॉड्यूलस हटाने के लिए इसे प्लस माइनस 3k करना पड़ेगा. कैन यू टेक दिस माइनस कॉमन? b माइनस a कैन बी रिटन एज, माइनस उधर ले जाएं, where अगर मैं इसको b माइनस a इज इक्वल टू माइनस प्लस 3k और मैं इसको अगर मॉड्यूलस में चेंज करूं, कैन आई एक्सप्रेस दिस एज, आपको इतना सब करके नहीं देखना है वहाँ पे, बिकॉज वी अगेन आई एम टेलिंग यू वी हैव टू सेव टाइम, हमें टाइम सेव करना है. ये बस मैं आपको एक, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मैं पूरा मेथड से कर रही हूँ. तो b माइनस ए इज इक्वल टू 3k, ये 3k है, 3 का मल्टीपल एक्सप्रेस हो गया, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, r को बिलोंग कर रहा है. नाउ वी हैव टू चेक फॉर ट्रांजिटिव, सो आई एम now the last relation which we need to check for is transitive. If AB belongs to R, BC belongs to R, we have to check for कि AC should also belong to R. For रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव हमको क्या चेक करना है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, हमें चेक करना है कि ए सी बी आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. नाउ फर्स्ट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 3k, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3k. मॉड्यूलस को हटाते हैं प्लस माइनस होता है क्योंकि वो आर को बिलोंग कर रहा है, 3 का मल्टीपल है. BC is also belonging to R मतलब कि B माइनस C 3m कोई और मल्टीपल है, m is where k and m are any other integers, are any integers here. तो B minus C will be equal to plus minus 3m. अब इसको, इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे, जो मेरी ये आई है, इन दो इक्वेशंस को आप अगर ऐड करेंगे, इफ यू ऐड देम, तो क्या आपका बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी. a माइनस सी अगेन वेयर आई एम राइटिंग, इनको करें, ये 3 के मल्टीपल्स ही हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, तो कैन आई राइट गिव दिस एज एनी अदर इंटीजर. अब इफ आई वांट टू रिमूव प्लस माइनस, मेरे को मॉड्यूलस यहाँ पे लेके आना पड़ेगा. सो क्लियरली a माइनस सी इज इक्वल टू 3 into p, where p is any integer. a c belongs to r, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल निकल आया, तो a c इज बिलोंगिंग टू r. a c बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव भी है. सो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऑल ऑफ दीज. ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे डिविजिबल बाय 2, मॉड्यूलस डिविजिबल बाय 2, 3, 4, ये सब इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं. तो बिकॉज MCQ है, आपको पूरा दिखाना नहीं है, यू मे स्विच टू the option equivalence or all of these, reflexive, symmetric and transitive. Is that clear? Now
लेट ए बी सी डी, ए सेट है ए बी सी डी का और रिलेशन हमको ये दे रखा है, तो इसमें ए है बी बी है. अब हमको ये दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें सी सी एंड डी डी इज नॉट प्रेजेंट. दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू आर. सी सी एंड डी डी इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. अब सिमेट्रिक, ए सी बिलोंगिंग टू आर, सी ए बिलोंगिंग टू आर. ए सी अगर बिलोंग कर रहा है आर को और सी ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, सिमेट्रिक तो पक्का है, सिमेट्रिक है, आपको और देखना ही नहीं है. आप सिमेट्रिक ऑप्शन पे चेक करिए और इसको स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. ठीक है, आप सिमेट्रिक जैसा आपका आ गया तो आप जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करिए और टाइम वेस्ट नहीं करिए इस क्वेश्चन पे. बट ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ए बिलोंगिंग इधर now pause the video, and try these questions. I'll explain it to you, but first you try these questions and see whether you know the answer to these questions or not. If you've tried, now listen to the explanation to each and every question. A is equal to ABC and relation set is AA, BB, CC. ये आपका रिलेशन सेट है. Now such relations जहाँ पे ये आइडेंटिटी रिलेशन है, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन है क्योंकि ए बी बी सी सी प्रेजेंट है, कोई और ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो इक्विवेलेंस हमेशा होते हैं. मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था. ये रिफ्लेक्सिव तो है ही है, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन निकल गया है. सिमेट्रिक भी है क्योंकि ए बी इज नॉट प्रेजेंट इन आर, तो बी ए को कहाँ पे लुक करें, तो सिमेट्रिक भी है. सेम रीजन से ये ट्रांजिटिव भी है. सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं. तभी ये इक्विवेलेंस है. एक और तरीका इसको कहने का ये भी है, द अनदर वे टू टेल द कॉन्सेप्ट इज दैट आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस होता है. नाउ कमिंग टू, आप इसमें इक्विवेलेंस चूज करेंगे, यू विल स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका ए अब दे ये ए आपका 1 2 3 दे दिया गया है. आपको इसमें ऐसे रिलेशन बनाने हैं, ऐसा रिलेशन बनाना है. कितने ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं जिसमें 1 2 भी प्रेजेंट है, 1 3 भी प्रेजेंट है, दोनों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है. दे आर नॉट ट्रांजिटिव. नाउ लिसन टू मी. फॉर डूइंग सच क्वेश्चंस प्लीज राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बार लिख लीजिए. आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है. ए है, यहाँ ए है, 1 2 3 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ. सो राइट ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स. मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए हैं. अब मुझे ऐसे रिलेशन सेट चाहिए जिसमें 1 2 1 3 प्रेजेंट हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो.
अब ना फॉर बीइंग रिफ्लेक्सिव मेरे पास ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। जितने भी मैं ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने ये तो कंपलसरी है ही है, ये तो सेट वे है रिफ्लेक्सिव के लिए। अब अगर मुझे 1 2 लेना है, इफ आई टेक 1 2, मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक तभी बनेगा। और अगर मैं 1 3 लेती हूँ तो मुझे 3 1 भी लेना पड़ेगा। अभी मैंने इनमें से कितने ऑर्डर्ड पेयर्स डाल दिए, ये डाल दिए। अगर अभी ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस पेयर, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 2 2 है, this pair, this relation is not transitive. अब अगर मैं इसमें 2 3 डाल देती हूँ, this is one ordered one relation, हमने एक रिलेशन बना दिया। अगर एक और मैं ऐसे रिलेशन बनाती हूँ जिसमें मैं जो हमारा बचा हुआ है ये 2 3 वाला है उसको भी डाल दूँ, तो मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा बिकॉज मुझे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो बनाना ही बनाना है। तो अगर मैं 2 3 और 3 2 डाल देती हूँ तो ये पूरा का पूरा A which is largest equivalence relation, that is ये transitive भी होगा। So only possible relation, number of possible relation here containing 1 2 1 3 which are reflexive and symmetric is 1. रीजन बीइंग, पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखती हूँ और मैंने 1 2 डाला है तो मुझे 2 1 डालना पड़ा, 1 3 डाला है तो 3 1 डालना पड़ा, तो मेरे पास बस ये 2 3 और 3 2 रह जाता है। अब अगर दूसरा रिलेशन में बनाने की कोशिश करती हूँ और 2 3 डाल देती हूँ, उसमें 2 3 डाल देती हूँ और फिर मुझे 3 2 भी डालना पड़ेगा, तो सारे ये ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो A क्रॉस A बन जाएगा। तो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है A क्रॉस A, वो नहीं करना है हमें, इक्विवेलेंस नहीं बनाना है, नॉन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो नंबर, पॉसिबल नंबर इज 1, ठीक है। ओनली वन नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी made containing 1 2 and 1 3, 1 3 as the ordered pair which are reflexive and symmetric. I hope this is clear. Coming to next question, आपके पास रिलेशन का को इस तरह डिफाइन किया है कि A B है और A क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, B क्या है, सेकेंड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? एंड B हैज टू बी ग्रेटर देन 6। ऑप्शंस देखिए, इसमें B ग्रेटर देन 6 नहीं है, ओमिट दिस ऑप्शन, इसे निकाल दीजिए। अब A और B के B जो है, A जो है B से टू, it टू लेस देन B, A should be 2 less than B, A should be 2 less than B। इसमें तो 5 है, इसमें ग्रेटर आ रहा है A, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 6 and 8। ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा, आप करके देख लीजिए। 6 is equal to 8 minus 2 and here B is clearly greater than 6। So ये left hand side and right hand side verify हो रहे हैं, so this ordered pair will come in this relation। Coming to next, now the relation x and y, this relation is now defined कि x y से तभी related होगा जब x minus y plus 2 is irrational। देखिए, पहला हमें रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है, आई हैव टू चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव x और x के लिए चेक करना है, x और x के लिए चेक करना है। आप रिलेशन आपका कैसे डिफाइंड है,
जब ये इरेशनल आ जाता है तभी वो ऑर्डर्ड पेयर इधर जाता है। आप देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, खाली √2 रहेगा, विच इज इरेशनल, क्लियरली इरेशनल। ये इरेशनल है, क्लियरली रिफ्लेक्सिव तो है। देखिए इक्विवेलेंस कहीं भी नहीं है, इक्विवेलेंस के लिए ट्राई नहीं करना है, तो हम इसको यहीं पे फटाफट करके ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे अपना ऑप्शन मार्क करके विल कैन स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्विवेलेंस होता तब हम इसको चेक करते। बट those who want to understand why this relation is not symmetric or transitive, please understand it. सिमेट्रिक क्यों नहीं है? देखिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। इफ आप चेक करिए ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को? इरेशनल नंबर है ये, दिस इज इरेशनल क्लियरली। अब बी ए बिलोंग्स, आई हैव टू चेक दिस इज बिलोंगिंग टू आर। अब मुझे इसका बी ए चेक करना है, तो अब आप इसमें x की जगह 3 पुट करेंगे, y की जगह -√2 प्लस √2, विच इज ए रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है, तो दिस विल नॉट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। आ जाइए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ये अभी मैंने बताया कि दिस बिलोंग्स टू आर, या आर को बिलोंग कर रहा है। देखिए √2 -3 प्लस √2, 2√2 -3, ये मेरी रिलेशन पे होने के लिए, मेरी रिलेशन के सेट में होने के लिए मेरी कंडीशन क्या है? x माइनस वाई प्लस √2 हैज़ टू बी इरेशनल। मैंने ये लिया, ये इरेशनल है, तो ये बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये हम ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? आई विल चेक फॉर 3, 2√2, इसके लिए चेक करूंगी मैं। 3, 2√2 के लिए चेक करूंगी। करिए 3 - 2√2 प्लस √2, 3 -√2, इसको सॉल्व करेंगे, -√2 है, ये इरेशनल है, दिस इज इरेशनल। क्लियरली दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, आर को ये बिलोंग कर रहा है, रिलेशन सेट को बिलोंग कर रहा है। हेयर आर इज रिलेशन सेट, रिलेशन सेट को ये बिलोंग कर रहा है। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट अस चेक फॉर ए सी। ए सी के लिए चेक करते हैं। √2 डाला यहाँ पे, -2√2 प्लस √2, इसको सॉल्व करेंगे, विल सॉल्व दिस। 2√2 - 2√2, √2 प्लस √2 इज 2√2 - 2√2, विच इज 0। ये रैशनल नंबर है, दिस इज रैशनल नंबर। ये दिस डजेंट बिलोंग टू आर, ये आर को बिलोंग ही नहीं कर रहा। √2 AC इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, तभी ये ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। बट एज आई सेड कि जैसे आपने रिफ्लेक्सिव फाइंड आउट कर लिया था, आप चूज करिए एंड स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी A is 1 2 3,
आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इसको ए क्रॉस से फटाफट लिख दीजिए। नाउ पहला रिलेशन, लेट अस मेक फर्स्ट रिलेशन। पहला रिलेशन इक्विवेलेंस के लिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, ये तो होने चाहिए। कोई भी रिलेशन आप बनाएंगे R1 R2, आपको रिफ्लेक्सिव के लिए पहले ये 3 तो डालने ही पड़ेंगे। इक्विवेलेंस है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ये हमने डाल दिया। अब 1 2 है, ये हमारी प्राइमरी कंडीशन क्या है, 1 2 होना ही चाहिए, 1 2 होना ही चाहिए, 1 2 तो यहाँ पे होगा ही होगा। अब दिस हैज टू बी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा ही, सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक करने के लिए हमको 2 1 भी, आई हैव टू यूज 2 1। अब देखिए ए क्रॉस ए से हमने कितने यूज कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, एंड 1 2 2 1, ये एक रिलेशन हो गया विच दिस इज ट्रांजिटिव 2, ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये हो गया। अब रिलेशन 2, रिलेशन 2, relation 2, as I told you, तो लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें 1 2 है तो 2 1 होना ही पड़ेगा, 2 1 को तो होना ही पड़ेगा बिकॉज सिमेट्रिक तो बताना ही है। अब ये तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। नाउ लेट अस कीप 1 3 हियर, हम इसे 1 3 यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, एंड इफ आई हैव टू कीप 1 3, मुझे 3 1 तो करना पड़ेगा, आई हैव टू कीप 3 1 हियर, इज दैट क्लियर? 3 1 तो डालना ही पड़ेगा। नाउ लेट अस चेक कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए 2 1 प्रेजेंट है, 1 3 प्रेजेंट है, लेकिन 2 3, इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए आई हैव टू कीप 2 3 हियर, 2 3 लगाना पड़ेगा। अब 2 3 डाल दिया है तो 3 2 हैज टू बी, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, 3 2 भी डालना पड़ेगा टू मेक इट सिमेट्रिक। तो अब तो सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है, सब, नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये पूरा रिलेशन ए क्रॉस ए बन गया। अब लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा आ चुका है, और कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन which needs to contain 1 2 are 2. Coming to the next question, hope this is clear, आपको समझ में आ गया कि लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया है और कुछ पॉसिबिलिटी डालने की है ही नहीं। तो लेट अस स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज पॉज द वीडियो, पॉज करिए, इसको ट्राई करिए, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना। चलिए, R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें A to A रिलेशंस है। अब R में, ये A में कितने एलिमेंट्स हैं? A में n एलिमेंट्स हैं, A में n एलिमेंट्स हैं, और R क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब वो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव में, इस रिफ्लेक्सिव में m ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, देयर आर m ऑर्डर्ड पेयर्स। सो हमें m और n के बीच में रिलेशन बताना है। देखिए, लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल। अगर मेरा 1 2 3 A में 1 2 3 है, इसमें n ऑफ A क्या है?
3 है. नाउ एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तो होना ही पड़ेगा. 3 ऑर्डर्ड पेयर्स तो पक्का कंफर्म्ड है, लेकिन इसके अलावा आई कैन ऐड 1 3 2 3. दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव. जितने मर्जी और ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन में से डालते रहो, ये रिफ्लेक्सिव तो रहेगा. सो आइदर एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइदर m ये ऑर्डर्ड पेयर्स n के इक्वल होने चाहिए, या ये ग्रेटर देन n भी हो सकते हैं. सो द राइट ऑप्शन विल बी दिस, m is greater than equal to n. रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फॉर दिस रिलेशन टू बी रिफ्लेक्सिव, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स तो आने ही आने हैं. I can add more ordered pairs because reflexive तभी, reflexive की only condition is that a अपने आप से relation होना चाहिए और आते रहे, तब भी वो reflexive रहेगा. तो this m will be greater than equal to n is the required answer, क्योंकि m ये ordered pairs, number of ordered pairs n से बड़े भी हो सकते हैं. तो एकदम m is equal to n मत choose करना, please think about it. Coming to next question. ये तो हमने बहुत बार कर लिया है. ग्रेटर देन वाला हमेशा ट्रांजिटिव होता है. देखिए ये दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो नॉट रिफ्लेक्सिव. इफ नाउ ये रिफ्लेक्सिव के लिए हमने चेक किया, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं. सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, क्लियरली ए इज ग्रेटर देन बी, बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए. दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स. बी ए से बड़ा नहीं हो सकता. अगर आप क्लियरली एक स्टेटमेंट यही कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी है, इसे ट्रू मान रहे हैं, तो बी इज ग्रेट, बी cannot be greater than false, b cannot be greater than a. The statement is automatically false. तो symmetric तो नहीं है. Transitive के लिए अगर a b belongs to r, मतलब a greater than b है, b greater than c है, b c is also belonging to r, a b belongs to r, BC belongs to R, B is greater than C. Of course, A will also be greater than C. A C से बड़ा होगा ही होगा. 5 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, तो 5 1 से बड़ा होगा ही होगा. तो ये transitive. Please remember, greater than, less than, they are always transitive. तो ये transitive relation है. Coming to next question. अब यूनियन इंटरसेक्शंस कैसे करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है, मैं सेट A 1 2 3 लेके चल रही हूँ, कॉमन एग्जाम. R2 भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, तो उनका यूनियन, their union will always be symmetric. आप देख लीजिए, इनको यूनियन करिए, all the ordered pairs will come in the union. तो उनका यूनियन हमेशा सिमेट्रिक है. दिस इज द स्मॉलर एग्जाम्पल आई हैव टेकन. आप बड़ा भी कर लीजिए, क्योंकि आपका यूनियन में यू हैव टू राइट और ऑर्डर्ड पेयर्स. तो अगर आप ए बी भी लिखेंगे तो बी ए भी यूनियन में आएगा, क्योंकि आपने R1 और R2 दोनों ही सिमेट्रिक लिए हैं. तो देयर यूनियन विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी रिलेशन करा दिया. अब ये हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है. जैसे आपको ए आपका पता है 1 2 3 है,
A1 2 3 या आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ ऐसे रिलेशंस क्या हैं, दीज रिलेशंस आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, क्योंकि इसमें एक्स वाई इज नॉट प्रेजेंट, वी विल नॉट, दिस इज रिफ्लेक्सिव, क्लियरली ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि एक्स वाई तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो वाई शुड वी लुक फॉर वाई एक्स? 1 2 है नहीं, तो 2 1 को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेम रीज़न फॉर ट्रांजिटिव। तो ये हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है इक्विवेलेंस होता है। और इसके साथ साथ आइडेंटिटी रिलेशन की एक और चीज़ भी कर लेते हैं कि अगर अगर एक ही कार्डिनैलिटी n है, n एलिमेंट्स है a में, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज बी 1. Number of identity relation will always be 1. Coming to next question. Okay, in this question we have been given two non-zero complex numbers. हमारे पास non-zero complex numbers हैं. ये complex numbers का concept आपने class 11 में किया था. Complex numbers are x plus iy, where x is real part and this is imaginary part. तो वो कहता है कि ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ना तो रियल पार्ट ज़ीरो है ना इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और ये रिलेशन सेट में तभी आते हैं, ये दोनों रिलेशन सेट में तभी आते हैं अगर हम ये ऑपरेशन करें, z माइनस z1 करें और z1 प्लस z2 करें, उनके डिफरेंस बाय एडिशन करें, डिफरेंस बाय सम करें, तो वो हमेशा रियल आएगा, तभी वो रिलेशन सेट में आएंगे। तो आई हैव टू चेक वेदर z1, दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों को चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों आएंगे तो वी विल चूज इक्विवेलेंस, डी ऑप्शन हम चूज कर देंगे। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन इन डिटेल। अब let us check whether the given relation is reflexive or not. वो कैसे होगा कि अगर हम z1 का रिलेशन z1 से ही चेक करते हैं, तो z1 minus z1 by z1 plus z1, this is 0 by 2z1. अब आपको पता है 0 by 2z1, this is real number, इसमें कोई imaginary part नहीं है. Obviously this, as this being real, it will come in the relation set. z1 का z1 से relation है, so clearly ये reflexive है, ये clearly reflexive है. Let us check whether this relation is symmetric or not. अगर हम कहते हैं symmetric के लिए कि z1 is related to z2, z1 z2 से related है, तो according to that z1 minus z2 by z1 plus z2 must be a real, ये रियल नंबर होना चाहिए, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है. अब इसको वी हैव टू चेक वेदर z2 इज रिलेटेड टू z1 और नॉट. हमें इसे चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट. इफ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, मैं न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये z2 माइनस z1 आ जाएगा, and I bring minus to the right hand side, so it will be z2 minus z1 by z1 plus z2, which is also a real number. ये भी रियल पार्ट है, इसका कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, रियल है. तो ऑब्वियसली z2 विल बी रिलेटेड टू z1, तो ये सिमेट्रिक भी है. दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑल्सो. लेट अस चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट. हमें चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है.
नाउ ट्रांजिटिव चेक करने के लिए वैसे तो आपको आपको ना अब क्लियरली रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है ना, क्लियरली इक्विवेलेंस वहां पे चूज कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन I'll discuss the question in detail with you कैसे ये ट्रांजिटिव है। Z1 क्या है, हम Z1 को X1 प्लस I Y1 ले लें, Z2 को हम X2 प्लस I Y2 ले लें। अब Z1 माइनस Z2 जब आप इन दोनों को माइनस करते हो तो इनका रियल पार्ट x1 माइनस x2 प्लस I y माइनस y2 एंड क्लियरली इनको ऐड करते हो तो नीचे डिनोमिनेटर में रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट ऐड होंगे। अभी आप इनको क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू रैशनलाइज, जैसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर के। सो नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इट इज गोइंग टू बी x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। एंड व्हेन विल डू आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन, व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन, मैं ये बीच में लाइन लगा रही हूँ सो दैट यू गेट टू दिस इज गेट टू नो दिस इज स्टेप 2। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, ये आपका एक रियल पार्ट बन जाता है। एंड इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल कम अंडर इमेजिनरी पार्ट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल also be imaginary part. And I would request you to revise complex numbers, but ये बहुत simple है, ये आ गया आपके पास। अब for this to belong to the relation, आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैं इस पार्ट को, जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला मेरा ये जो इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है, इसको मैं 0 ले लेती हूँ, बिकॉज रिलेशन सेट में तभी जाएगा जब इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस एज 0। एज 0, इज दैट क्लियर? मैं इसे 0 ले रही हूँ। एंड if I solve this, ये इस तरह आ जाएगा। मैं इसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से कर रही हूँ, अगर आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करना है आप सेम रिजल्ट पे आएंगे जैसे मैं आ रही हूँ। जैसे टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, मैं इसे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सॉल्व कर रही हूँ। बाय हाउ, इधर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 में इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय y1 माइनस y2 बाय C and D।
आपके दो रेशियोज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रेशियोज का होता है. एंड हियर इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, मेरा 2x1 बाय 2x2 will come out to be equal to 2y1 by 2y2. So clearly x1 by y1 will be equal to x2 by y2. x1 by y1 will be equal to x2 by y2. इस रिजल्ट से नाउ अब देखिए ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए मैंने क्या किया, Z1 आई टुक दैट Z1 इज रिलेटेड टू Z2 एंड दिस इज इन द रिलेशन सेट. उसमें हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को जीरो पुट किया, उससे हमारा क्या रिजल्ट आया, x1 बाय y1 इज इक्वल टू x2 बाय y2. अब Z2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू Z3. Z2 भी Z3 से रिलेटेड है, तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, this is going to be equal to x2 by y2 is equal to x3 by y3. जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी ऐसे आ जाएगा. from 1 and 2 can I say that x1 by y1 will be equal to x3 by y3? x1 by y1 is equal to x3 by y3. अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे ना, आपका जब हम Z1 रिलेटेड टू Z3 को चेक करेंगे, आपका फिर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा एंड इट विल ओनली द कॉम्प्लेक्स नंबर this relation will only keep real part only. So that's why this will be transitive, and since this is reflexive, symmetric and transitive, this relation is equivalence relation. I hope this is clear. Coming to next question. These are some few more questions. Please इनको try करिए and pause the video and try them yourself. आप अपने आप try करिए ये. I'll discuss these questions in detail. A relation R is defined from 2, 3, 4, 5 to 3, 6. आपका relation 2, 3, 4, 5 से 3, 6, 7, 10 तक है. ये x का है, ये y का है. Only those ordered pairs will come in relation set when x is relatively prime to y. मतलब कि x और y में common factor 1 है, तो obviously 2 and 3 में common factor 1 है. This ordered pair will come here. 2 और 6 में कोई there 2 is the factor of 6, prime नहीं है. 2 and 7 will come. 2 and 10 will not come in the relation set as 2 is the factor of 10. 3 का भी factor होता है, 3 6 का भी factor होता है. 3 और 7 will come here. 3 and 7 will come here. 3 and 10 will also come. 4 और 3 will also come as इनमें common factor 1 है. And 4 and 6 common factor 2 है, तो नहीं आएगा. 4 और 7 आएंगे. 4 और 10 नहीं आएगा. 5 और 3 आएगा. 5 और 6 आएगा. 5 और 7 आएगा. The domain of this is to first domain will be 2, 3, 4, first element and 5. Domain इसका 2, 3, 4, 5 है, तो clearly D option. Coming to next question. R is the largest equivalent set. As already discussed, किसी भी
रिलेशन का लार्जेस्ट, इफ रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट ए, largest equivalence set will be largest equivalence set will be their Cartesian product. उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. तो R लार्जेस्ट इक्विवेलेंस सेट है. अब S कोई और रिलेशन है. हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. हर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. तो here S is any other relation on A. तो S is clearly a subset of R. S is clearly a subset of R because R largest equivalence set है. So B is the correct answer for this question. R is a relation from 11, 12, 13 to 8, 10, 12. आपका अब रिलेशन किससे है? 11, 12, 13 का 8, 10, 12 से है. और इसमें क्या बोला है? y is equal to x minus 3. रिलेशन सेट इस तरह डिफाइंड है. तो लेट अस सी कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. इफ आई पुट x as 11, y will come out to be 8. एक ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. 12x रखते हैं तो y 9 होगा, विच इज नॉट देयर, y में है ही नहीं. 13 रखते हैं तो 13 का इमेज 10 आएगा. तो ये रिलेशन सेट है. R इनवर्स क्या हो जाता है? R इनवर्स इज व्हाट? वैसे तो R इनवर्स इज व्हाट व्हेन x बिकम y. ये हम R इनवर्स ये होता है. देन R इनवर्स इज 8, 11, 10, 13. इनमें से दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. R इनवर्स वो होता है जब x आपका y बन जाए, y आपका x बन जाए. सो इनवर्स रिलेशन हमने लिख दिया एंड द करेक्ट ऑप्शन इज A. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Set consisting of n elements, the number of reflexive relations on set A. Clearly, number of reflexive relations on set A is 2 raised to power n square minus n. हम 2-3 बार कर चुके हैं. C option is the correct answer. Now, if R is a relation on set 1, 2, 3, R is equal to relation में सिर्फ 1, 2 है. तो बताइए ये कौन सा सेट है? I've discussed this question in detail. This is transitive. ये reflexive है नहीं, symmetric है नहीं. अब x y belongs to R. We don't have to look for y z. है ही नहीं y z, तो हम x z के लिए क्यों look करें? तो this is transitive relation. 2-3 बार discuss हो गया. Please go back and if you do not know the answer, please go back and listen to the video properly.